I'm live. Yes, it's live. I think so. Yeah, I hope it's live and it's going. It On is, the I think. Facebook. It is going, I think so. I have Facebook on, but it doesn't. एक second. I will check it. Yeah, yeah, it's live now. Yeah, yeah, it is live. I am मेरा Facebook खुला हुआ है. Okay. It's okay. इतनी देर में लोग आ जाते हैं. Yeah, it's live. Okay, hello everyone. This is Maheen Hashmi, and I hope you are doing well. So, if you, a lot of you who have joined the group Free Spirits, you know that why I am here, and what am I talking about. This is one segment called Let's Talk, and then in this segment, that I choose and invite different individuals who are doing amazing job, who wants to share their journey, who have a journey, who are going through it, or they're already done a lot of things. So we had a couple of conversations, and we talked about a lot of different social issues, parenting, and digital marketing. There were a lot of other individuals as well. You can watch those sessions on YouTube. So this is live, and most of my friends know that I was locked out of Facebook for 1 month and a half. So I was doing these on IG, Instagram Live. So now this is our first time on Facebook. First of all, if you have not joined this group, Free Spirits, please do join, and we will connect more. We will be supporting you if you have a small businesses, or you are providing some professional services, or if you have an upcoming event, webinar, or anything. You can join this group, and I'm there to support you. And there are a lot of other people who are there to support you as well. So today I have a very young, talented individual who is a tech guy that we call. It's not a good term. I would admit that, but he's doing a fabulous job. He has an online learning portal, which is called Padhaku.com. And there is, when we were talking last time, so we had a lot to talk about. That's why we decided that we talk in front of you. And hashtag Let's Talk for Free Spirits is for more than creating a dialogue and sharing their journey. And because we all are doing a lot of things and doing different things, so this is all about that platform. So I have Sefu here. Sefu Khan. Hi, Yes. Sefu. Hi, everybody. And Mary. So, what should I call you, Sefu or Sef? Whatever is easy for you. So people Sefu know me sounds by good the and by different. the name called by the name as Sefu. But if you Uh-huh. think that is too long for you, just Sef is fine. So it's up to you. Sefu is nice. I think it has its own personal thing. Like you are the. There's so many Sefs, but you are the only Sefu. Yes, I agree with you. So one of Yeah, the main reasons why I have this name is also this, that you might know a lot of Sefs, but you might only know only one Sefu. one So I Sef. thought, So okay, you are yeah. not in Pakistan right now. Where you are? Can you tell Yes, us I how is am it going there? unfortunately not in Pakistan right now. I'm in Germany. I'm doing my master's from here. I came here 2 years back. So far, so good, but still दिल पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. बाहर पढ़ने ज़रूर आए हैं, but Pakistan never breaks the connection. वापस चले जाए. ये कहना चाह रहे हैं. वापस जाना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है. दिल जिस तरह मैंने कहा वहीं के लिए है. सो टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा. थोड़ा एक्सपीरियंस लेना होता है, एक्सपोजर लेना होता है डेवलप्ड कंट्रीज से, एंड देन डेफिनेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी कुछ करेंगे. Inshallah, Ta'ala. So you have a very. I want to start because I know you are doing a lot of things and you have a lot in mind, and then you are already a student and you already have an initiative while you are being an initiative student. This is remarkable. So you have. I want to know more about के पढ़ाकू.com तो अभी है ना. It's like one thing you have a title, but उससे पहले क्या था, क्या चल रहा था, और यहाँ तक कैसे पहुंचा है? ये कैसे सोचा Yes, कि so ये very क्या good बनेगा? question. So if I talk शुरू about my शुरू से शुरू history, करना है. I did my O and A levels, but बिल्कुल बिल्कुल मैं O and A levels अपने high school या time से वहां शुरू से. करता हूँ. So We want to know that. the ultimate problem, or the ultimate problem which I used to which used to come into my mind was कि
मसला क्या है. सो मैं जब पढ़ता था तो मुझे कुछ मसला लगता था कि देयर इज समथिंग मिसिंग. सो बट एज टाइम पास तो इतना पता नहीं होता, तो चलते चलते ओ लेवल्स कर लिया. ओ लेवल्स के बाद आई केम टू दिस, आई फाउंड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड openstudy.com where I used to teach, and it was a very Okay. social site where students can connect with students. So हमारे यहाँ यूजली ये नहीं होता कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट से ही हेल्प मांग रहा हो या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की Hmm. हेल्प कर रहा हो. यूजली क्या होता है कि या तो आप अपने किसी ट्यूटर के पास जाते हैं, बड़े भाई बहन के पास जाते हैं, या आप किसी अपने स्कूल के टीचर के पास जाते हैं हेल्प के लिए. सो दैट इज समथिंग विच आई फाउंड आउट कि भाई पढ़ने का या कोई भी चीज सीखने का एक और तरीका है जो हम पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे मिस आउट कर रहे हैं. सो दिस वाज माय ओ लेवल्स टाइम. फिर उसके बाद आई डिड माय ए लेवल्स. तो ए लेवल्स के दौरान भी आई केप्ट ऑन doing this online tutoring thing. So there used to be students from all around the world of my age. I was 18 or 20 back then. और उस टाइम पे मेरी एज के लोग आते थे, मेरे जैसे सवाल करते थे जो मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था, लाइक ओ एन ए लेवल्स में जो चीज पढ़ता था, और वो लोग भी उसी तरह के सवाल करते थे. So I thought कि it was very fun and intuitive thing for me. So I thought, okay, let's keep on doing this. I kept on doing this for 2 years. Then I got admission at IBA for my bachelor's. फिर time definitely कम हो गया. But I realized this huge gap कि पढ़ने का या सीखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप किसी फेलो स्टूडेंट से हेल्प लें बजाय इसके कि आप किसी टीचर या किसी बड़े के पास जाएं. Then at IBA, it was a very good learning curve over there. बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलप हुई. So वहां पर जो चीजें मैंने यहाँ पे सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. And then finally I came to this conclusion कि yes, there is this gap which we can do it in Pakistan. So पाकिस्तान के अंदर एक और मुझे बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आता है. वो ये कि around 60% of our population is below 30. So जो बेसिक मसला है हमारे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो एजुकेशन का होता है. सो माय Hmm. आइडिया वाज कि हम इस एजुकेशन को सिंपल बनाएं, लर्निंग वाइज एक्सेसिबल बनाएं. सो सिंपल बनाएं सबसे पहले कि बच्चे को जो भी सीखना चाहता है उसको सीखने में बहुत आसानी हो, उसकी लैंग्वेज में हम बात करें बजाय इसके कि मैं अपनी लैंग्वेज में बच्चे को बोलूं कि तुम इस तरह सीखो. दूसरी Hmm. चीज वाज एक्सेसिबिलिटी, कि हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं. क्योंकि आई ऑल्सो स्टडीड एट on a need based scholarship at IBA. So अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि they are unable to either they don't have the resources to study. अगर उनको पढ़ना होता है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, या कुछ कुछ के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती. अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कराची में नहीं रहता, कहीं इंटीरियर में रहता है, मे बी ही डजंट इवन नो के किस तरह के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे होती है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ये एक ह्यूज गैप था जो मुझे नजर आता था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई एक अच्छी चीज भी है, एक ये चीज भी मैं कर सकता हूँ, या मेरे पास ये भी ऑप्शन ओपन है, या ये वाले अवेलेबल हैं. सो आई थॉट कि उसको भी मुझे गैप करना है. सो आई वाज लाइक कि ये सारी चीजें हैं जिसको मुझे सॉल्व करना है. तो आई आई स्टार्टेड पढ़ाकू, और फिर वहां से मैंने कहा कि ओके, लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग आउट. So I've been working on this idea, this vision for last 2 years now. Right after I graduated from IBA, और so far so good. So we are building tools, we are building this bridge कि जहाँ पे ना बच्चे को पढ़ने में या सीखने में इंटरेस्ट पैदा हो, उसको इसको ये हो कि यार ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे सीखनी चाहिए, या इससे मुझे सीख के फायदा होगा. तो मुझे एक ये चीज नजर आती थी अपने एजुकेशन सिस्टम में कि जब हम कोई चीज सिखाते हैं ना, तो वो हम उसके ऊपर इन्फोर्स करते हैं, उसको ठूसते हैं. Hmm. आई वाज लाइक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चा मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं हम, कि बड़ा बच्चा छोटे को कहता है तुम सीखो. मेरा ये ख्याल था कि हमें हमें एजुकेशन को ऐसा फन बनाना चाहिए, ऐसा इंटुइटिव बनाना चाहिए कि नीचे से टॉप बॉटम टू टॉप जाएं हम. बच्चा बोले कि मुझे सीखना है, तो फिर वो एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट होता है. सो दिस इज अ नटशेल जो मैंने सोचा था कि हम कुछ इस तरह करते हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी कि पाकिस्तान में मैं ये भी देखता था कि मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे, फेलो मेरे जो दोस्त थे, उन कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे पास थी लेकिन उनके पास नहीं थी. सो आई वाज लाइक कि अगर इनको भी चीज एक अच्छी चीज सिखा दी जाए या अच्छी चीज सीख लें या उनकी लैंग्वेज में, तो उनको कितना फायदा हो सकता है. सो
so I identified some basic problems कि भाई ओके ये वाली सारी चीजें हैं जो मसले कर रही हैं और इन मसलों को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. So I am trying to solve it in my way. This I would say. दैट्स अ गुड स्टार्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ये होता है कि कि आप हम लोग एक तरह से फीड कर रहे होते हैं नॉलेज कि बस पढ़ो ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए. बिल्कुल एक आपको एक लकीर के फकीर की तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है. बिल्कुल No offense, but I think we both agree on that कि we have a very stagnant education एग्जैक्टली system. बिल्कुल सही There वर्ड संभाल दिया आपने. for because I've been teaching for 12 years और वही है कि grades और grades university grades दाखिला grades admission this and that ना हम बढ़ नहीं रहे हमारा burden बढ़ता जा रहा है. So पढ़ाकू एग्जैक्टली अच्छा वैसे हम देखते हैं कि बाहर तो बहुत ज्यादा और एक ये भी एक misconception है. I want to discuss it with you कि जी आपको certain schooling करनी है O levels A levels and then you go. There's no concept of homeschooling or for example I want to know more about पढ़ाकू in the sense कि I think a lot of people want to know because कि जिस तरह से Udemy है या Skillshare है that you learn skills and then you don't have to go for certain kind of education system and you can go forward with your profession. So how is it different with that? कि पढ़ाकू में क्या है? कि is it like skill based or वही जो courses हैं that it's like online? If you can describe more about that, do you know what I mean? Yes, so I will come to this question, but first, since this is a very Sure. informal session, I would like to ask you if can you quickly check if this is being this is shared properly because I cannot see it. Oh, okay, you're talking about the screen, right? Yes. Uh, This stream link, this is this being shared properly? it's not showing on my side also. Wait, it's okay. एक काम करते हैं हम यहाँ पे हो सकता है device is not connected. Have you connected any device? No, but No, I think यहाँ so मुझे okay. तो मुझे स्क्रीन शेयर नहीं नहीं करनी. यहाँ मैं ये पे कह रहा हूँ कि आप screen share नहीं हो कि गया है. What do फेसबुक you want वगैरह to do? पे प्रॉपर्ली फेसबुक Facebook वगैरह पे पे तो शेयर है. हो गया प्रॉपर्ली. Yeah. We are So live on because I Facebook. cannot see the link. You cannot use the link. Wait. Let me see if I can tag you. It is. We are online and Yes, people or are, maybe you have can. joined and listening. Yeah. I have. It's okay. You can carry on. I will do this. It will go. All right, I nice. will share it with you in the end because you are live on my platform right now. So Hmm. you can carry on. I will do that in the meanwhile. मेरे All पास right. तो live जा रहे हैं और people are there. Yeah. चलें, that's nice. So पढ़ाकू is just a name, right? But पढ़ाकू के पीछे जो विजन है ना वो ये है कि हम बच्चे के लिए आसानी पैदा करें. So होता क्या है कि अभी किसी भी बच्चे को अगर मजा चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, ही गोज टू फोन. उसके पास फोन डिवाइसेस हैं. बट अगर हम देखें कि जब वो स्कूल जाता है तो वो जो सारा उसको मजा या सारी चीज जिससे वो जो वो हर वक्त यूज कर रहा है या जहाँ से वो नॉलेज लेता है वो स्कूल्स में हो ही नहीं रहा. सो स्कूल्स के अंदर अभी भी वही हम कॉपीज भर रहे हैं, बोर्ड से देखते हैं, वो लिखते हैं और वो उस तरह हम लर्न कर रहे हैं. सो मेरा ये आइडिया था या जिस तरह हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं वो ये सॉल्व करना चाह रहे हैं कि हम कोई गेमिफाइड मेथड बनाएं, कोई ऐसा इंटुइटिव मेथड बनाएं कि बच्चा खुद सीखे और बच्चा खुद बोले कि यार ये चीज मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज करूंगा तो मुझे ये पॉइंट्स मिलेंगे या ये फायदे होंगे. तो वो एक ऑटोमेटिक ना बच्चे को खुद होता है कि यार मुझे ना और ग्रो करना है. एंड दिस इज अ वेरी प्रूव्ड कॉन्सेप्ट. Yeah. देयर आर वेरियस रिसर्चेस ऑन दिस कि अगर हम कोई इस तरह का गेमिफाइड मेथड बनाएं, गेमिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएं या हम कुछ इस तरह की चीजें करें तो उस सब से जो है ना कोई भी यूजर जो है ना वो उससे स्टिक अप कर जाता है कि इसको हमें मुझे यूज करना है. सो द आइडिया इज कि हम बाकी सारी चीजें तो मजे में कर रहे हैं. सही है, आप नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, एक सीरीज देखते रहते हैं पूरी. बट द आइडिया इज कि आप पढ़ाई को भी ऐसी चीज बनाएं कि बच्चा बोले कि मुझे ये सीखनी है, मुझे खुद करना है, मुझे ये भी चीज सीखनी है, उसको इंट्रीग हो पढ़ाई या कुछ भी चीज सीखने को. So how are we are solving this is कि we have this one platform जिससे जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड एंटिटीज होती है ना या पर्सोनाज होते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन नेम टॉप 4 लाइक स्कूल हो गया, पेरेंट हो गया, उसके ट्यूशन टीचर्स हो गए फॉर एग्जांपल और उसके अपने फेलो स्टूडेंट्स हो गए. सो वी आर बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन ऑल ऑफ दीज 4 एंटिटीज. व्हाट वी आर सेइंग इज कि अच्छा आप स्कूल जाते हो, आपकी फॉर एग्जांपल एक आईडी है, आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, आप
प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो, सारी चीजें आपको असाइनमेंट्स, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपको जो एग्जाम्स देने, सबमिशन है, सारी चीज वहां नजर आएगी आपको, सारे अपने क्लासमेट्स वहां नजर आएंगे। अगर आप अगर आपके पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको आपकी प्रोग्रेस देखनी है, उनको आपको ये देखना है कि उन्होंने फीस पे की है या नहीं की है, तो वो भी वहीं पे आके देख लें, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, ब्रिज हो गया। एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर या रहा है, रिजल्ट्स एग्जैक्टली क्या क्या हैं। क्या सीख रहा है। एग्जैक्टली और एक और मसला ये होता है कि उनको ये नहीं होता कि मतलब एक 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 गैप मुझे नजर आता है पाकिस्तानी कल्चर में, वो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने टेक सेवी नहीं है और बच्चे बहुत टेक सेवी हैं। तो वो ना एक एक लैंग्वेज गैप है ह्यूज, कि बच्चा आपसे 200 की स्पीड में बात कर रहा है किसी चीज के बारे में, बट पेरेंट्स आर लैकिंग बिहाइंड, एंड आई थिंक कि उससे ना हमारे कल्चर में गैप इंक्रीज होता चला जाता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल्सो हियर इज कि हम पेरेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी पे आओ, वो इसलिए ताकि आप अडेप्ट करो, ताकि बच्चा ये समझ सके कि आप और वो सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो पेरेंट्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि पेरेंट्स को पता लगेगा कि ओके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देन थर्ड थिंग कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को कोई ट्यूशन टीचर चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी उसको वहीं मिल जाता है। फिर मोर इम्पोर्टेंटली कि अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल मैं 8th ग्रेडर हूँ और मैंने कोई सवाल पूछना है, मुझे कोई कोई बायोलॉजी का सवाल पूछना है फॉर एग्जांपल, या केमिस्ट्री का सवाल पूछना है, सो आई एज अ स्टूडेंट कैन फाइंड अदर 8th ग्रेडर्स और वो मुझे मे बी हेल्प कर सकें। सो वी हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इज वी आर कमिंग अप विद अ गेमिफाइड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप गेमिफाइड तरीके से एक करेंसी होगी जिसके थ्रू आप सारी काम इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे। सो इट्स मोर लाइक अ गेम। सो पढ़ाई को या किसी भी चीज सीखने को हमने गेम में कन्वर्ट कर दिया है, कि बच्चा या कोई भी चीज कोई भी एंटिटी उससे स्टिक हो जाए कि मुझे चीज सीखनी है, मुझे कोई चीज इंट्रीग करेगी। सो दिस इज द विजन हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, और so far we are successful so far, I would say. Okay, I just learned one thing in the banner that I have written Looks before. very nice. And I Thank you. Then I realized I'm also learning because technology is, I think it's kind of it's an ocean कि आप जितना dig करते हो उतनी चीजें आप learn कर I'm learning right now and it's okay to अगर मुझे कुछ नहीं आता तो नहीं आता ना, मैं सीखूंगी तो आगे बढ़ूंगी। So you know Exactly. अभी मुझे याद आया कि वो अच्छा बैनर भी तो था जो पहले से बना के रखे थे और वो यहाँ पे क्लिक करके जो करना था। Very So, nice. this is very interesting. So if this is you are talking from a point of view of a student. Hmm. Okay. So what is it for teachers that how because teachers are also in the same pool and उनके साथ भी बहुत मसले मसाइल problems और all of that है, the education system, and I would call it I have been teaching even different schools in Karachi, Yes. but it's more of a mafia, you know, कि grade or certain grades और शुक्र है कि मैं अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ाती थी आर्ट्स, मुझे केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ाना होता था वरना Hmm. बहुत ज्यादा लोड होता। तो देन Exactly. आप जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सिर्फ ग्रेड्स एंड दिस एंड एज एंड स्टार्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव, you know, how So, can they change or parhaku.com, how can you play a role or anything like that, like how they can Pakistani, be जी। involved? सो पाकिस्तानी कल्चर में ना टीचर्स बेसिकली दो काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि वो डे टाइम में स्कूल में पढ़ाते हैं, और दूसरा काम ये होता है कि मे बी दे हैव सम ट्यूशंस इन द पार्ट टाइम और समथिंग लाइक दिस, या किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं या समथिंग लाइक दिस। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एज वेल। और उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि अगर सुबह फॉर एग्जांपल उनको स्कूल में पढ़ाना है, स्पेशली विद दिस कोविड टाइम्स, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स एक अभी ह्यूज मसला जो हम ब्रिज कर रहे हैं वो ये है कि teachers are losing their jobs because Yeah. students aren't paying, because schools don't have the infrastructure कि अगर उनको ऑनलाइन जाना है तो वो ऑनलाइन कैसे जाएं। सो हाउ वी आर डूइंग इज के वी आर प्रोवाइडिंग टूल्स टू द स्कूल, कि हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके अपने टीचर्स को एनरोल करें, अपने बच्चे को एनरोल करें, ताकि टीचर अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे डाल दे, अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दे, और आपके बच्चे जो हैं वो वहीं पे ऑनलाइन देखेंगे, और वो आपको ही पता लग जाएगा कि आपके बच्चों ने वो कोर्स देखा है या वो असाइनमेंट या वो वीडियो देख लिए। सो Hmm. एक जो चीज हमने ब्रिज को एक गैप को ब्रिज किया है, वो इस तरह किया है कि डे टाइम के अंदर जो स्कूल या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो
जो टीचर्स इस तरह अब नहीं पढ़ा सकते वो अब इस तरह पढ़ा सकते हैं, स्पेशली इन दीज कोविड times. The second thing is about जो टीचर्स की सेकंड इनकम होती है या सेकंड वर्क होता है, दैट इज अ ट्यूशन, या वो किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं. So we are also trying to bridge that gap, and how we are doing it ke a teacher who wants to teach can come here. अब उसके पास दोनों तरीके हैं कि अगर उसको ट्यूशन टीचर्स फाइंड, अगर उसको बच्चे फाइंड करने हैं, फॉर एग्जांपल किसी को केमिस्ट्री पढ़ना है, किसी को आर्ट्स पढ़ना है, किसी को जो भी चीज पढ़नी है वो वहां पे डाल दे बच्चा, और टीचर को ये देख ले जाके इस बच्चे को पढ़ना है, ही कैन बिड एंड एवरीथिंग. The second thing what he can do is he can use our platform to teach online and to reach students outside of Pakistan. So since our platform is very global, so a huge thing what teachers do in Pakistan is they teach in Gulf states, for example, because the curriculum is very similar. So Yeah, yeah. uh, Hmm. we are also trying to bridge that gap कि अगर आपको आपको for example यूएई में बच्चे मिल जाएं, आपको सऊदी अरेबिया में बच्चे मिल जाएं, because this is something which teachers heavily rely on, and we want to also solve this problem. Okay, okay. Because I think unless students would be willing to, in fact, love to go to another platform, but ये कि वहाँ पे कोई पढ़ाने वाला तो हो, तो तभी तो ये बिल्कुल, आगे बढ़ सकता है. It's like both ways. It's parallel, right? So बिल्कुल. what is the response so far? Launch हो गया है, कब होगा? All of those details. Can you share with us? Yeah, so currently we are in beta testing, and we have about 5 schools and about 5,000 students enrolled in our system. Mm-hmm. अभी इनकी डेली क्लासेस हो रही हैं, सो वी आर स्टिल टेस्टिंग इट आउट. डेली क्लासेस हो रही हैं, सब टीचर्स हैं, कुछ कुछ टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं. स्टूडेंट्स आर लॉगिंग इन, सारी चीज़ें, वो सारे असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन कर रहे हैं, टाइम टेबल्स वगैरह सब बच्चों को नज़र आ रहा होता है, तो डेट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, एंड डेट इज़ रिगार्डिंग स्कूल्स. स्कूल्स हियर इन पाकिस्तान आर मेनली, बहुत सेठिया निज़ाम होता है वहाँ पे, एंड दे आर हाँ. वेरी मच कंसर्न्ड विद के हमें पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए वो कहते हैं कि हमें बस कुछ कुछ करके दो, हमारा मसला सॉल्व करो, ताकि हम बच्चों को एनरोल करें और हमें फीसेस मिलती रहें. किसी तरह से, या एग्जैक्टली, चलता सो रहे, हाँ, किसी ना चलता रहे किसी तरह निज़ाम, से. एग्जैक्टली. सो वो एक मुझे वहाँ पे मसला नजर आता है कि हमें बहुत मुश्किल होती है टीचर्स को, सॉरी, स्कूल्स को या इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस करने में कि इट्स नॉट जस्ट टू मेक मनी, इट आल्सो हैज अ पर्पस बिहाइंड इट. तो वो Yeah. एक लोगों को समझाने में, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है. But apart from this, for students, it's very nice because now they get more phone time. Students need more phone time. So, so वो phone पे बैठ के अपने tutorials देख रहे हैं, अपने teacher से बात कर रहे हैं. So, it's very intuitive for them. So Yeah. far, so good. एग्जैक्टली. नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी जैसे कोविड में जो हुआ था कि स्कूल की फीसेस पूरी जारी थी, मगर जो हालात थे, आई डोंट हैव किड्स, यू डोंट हैव किड्स, बट वी बोथ आर कनेक्टेड विद द एजुकेशन सिस्टम, राइट? Yes. सो जो डू यू अग्री कि जो अभी जो पिछले 3 महीने में हालात थे कि जी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं बट फीसेस पूरी जा रही हैं एंड एवरीथिंग, एंड दे हैव टू पे टीचर्स, एंड do you want to discuss that, and any thoughts about that? Because I think कि um अगर आपकी कॉस्ट की कट डाउन हो रही है कि आपकी एसी नहीं यूज हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज हो रही, पानी एंड एवरीथिंग, सो यू कैन कट डाउन द कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो, इंस्टेड ऑफ डूइंग बिल्कुल. बिजनेस, जस्ट डू, और ठीक है उसमें भी आपका ब्रेक इवन हो जाता है, इतना I would बुरा हाल totally नहीं agree with होता you. है So, कि exactly. So as I you mentioned agree with earlier, that? I think we can use this too, because I've seen so many parents, and a lot, I have friends who have kids, so I hmm, see everyone is struggling with their children's education. That's the first concern in their mind. कि fees they pay करनी है, school की books इतनी expensive है, so why don't we cut down these costs? Or exactly. it's not So, it's not yes. So first point I would also like to add is regarding the feces thing which you mentioned. Like पिछले 3 महीने में students, the schools were like कि हमें पूरे पैसे चाहिए. yeah, I think this is also one very basic problem in Pakistan. Just like for example, here in Germany, I saw that there's a concept of homeschooling. Even though the education is very free and quality education is free, this is yeah, important. Like education is also free in Pakistan, but quality education is not free in Pakistan. yeah, So यहाँ पे even if the education is free,
मैं पॉइंट जो बोल रहा था वो भूल गया मैं एजुकेशन फ्री है मगर उस फ्री होने का कोई फायदा नहीं है बस फ्री होने का कोई है ही फायदा नहीं नहीं है। कुछ कोई फायदा यस। नहीं है और बहुत सारे स्कूल्स तो गवर्नमेंट के आई नो इट थ्रू अ फ्रेंड हु वाज वर्किंग ऑन दोस ग्राउंड्स के बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हुए हैं स्कूल के फंडिंग आती है बट वो फंक्शन नहीं करते Exactly. So that is also very bad. So या what I was saying was earlier मुझे point याद आ गया and that was कि here even if the education is free, it's not for profit. पाकिस्तान के अंदर education is for profit and that is something which I don't like. Um, Education should not be for profit. It should be a not for profit thing. One of the reasons is because कि the person who cannot afford or who doesn't have the resources to do this, उसकी जिंदगी का मामला होता है। और अगर हम सिर्फ एक बंदे की जिंदगी से नहीं खेल रहे, हम पाकिस्तान की यूथ से खेल रहे हैं एंड दैट पूरी इज जनरेशन है एग्जैक्टली एंड दैट इज नॉट अ गुड गेम। क्योंकि वी लिव इन अ कम्युनिटी और अगर कम्युनिटी में एक वही बात है कि अगर एक तरबूज खराब होता है तो वो सब तरबूज को खराब कर देता है। कुछ इस तरह की एग्जांपल है, मुझे याद नहीं है। एप्पल था एप्पल है एप्पल था, सेब एक है सेब, सेब एक सेब सब सारे खराब कर देता है। सो है दैट इज या समथिंग एक व्हिच इज नॉट गंदी नाइस। मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे एग्जैक्टली। सो स्पीकिंग ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है और ये बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स सबको समझनी चाहिए कि अगर आपकी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है, आपकी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं वो यूज नहीं हो रही हैं, देन व्हाई आर यू चार्जिंग फुल टाइम फीस? Yes, you can cut it down so you can pay the teachers and tutors and everything, but this was not right. And इसी तरह की जो चीजें हैं ना वो हमें पाकिस्तान के अंदर रीथिंक और री इन्वेंट करनी पड़ेंगी कि हाउ आर वी डूइंग दीज बेसिक थिंग्स और क्या क्या चीजें हमें किस किस तरह करनी है। then only I think we can solve the very basic problems, otherwise we are not heading into the right direction in my opinion. इनफैक्ट देयर इज अ आई थिंक फास्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है आई डोंट रिमेम्बर द नेम आई थिंक लम्स कहीं पे उन्होंने फीस भी रेस की है इंक्रीज की है Increase किया, एंड yes, it is इंक्रीज now. की है या Yes. चलो अभी तो कोविड देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट एंड दिस हैपेंड विद मी एज वेल व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड इन इंडस वैली सो उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे दैट टाइम एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड आई वाज मेरा सिचुएशन ये था कि मैं अपनी स्टडी के लिए काम करके खुद से पे करती थी so I was on my own and it was very difficult आपके sponsors होते हैं scholarships होती हैं आपकी एक एक पाई का हिसाब होता है Exactly. and semesters के बीच में they raised 10,000 more और वो जब हम पढ़ रहे थे तो it was increasing every semester and that's because look at the business mind कि आप कुछ कर नहीं सकते ना so you Exactly. have to pay You and then have to. parents end up paying because वो बीच में आप छोड़ नहीं सकते and this the same thing happened I feel it's more of a blackmailing with Exactly. parents के उनको ये कहा जाता है कि भाई बच्चे अगर किसी के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं पहले इतने प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस चीज में क्यों पढ़ेगा बिल्कुल। कि स्कूल्स के आप पीछे जाएं और हम इतने फंसे हुए भी होते हैं कि कुछ कर नहीं पाते तो व्हाट डू यू थिंक हाउ कैन वी हैव सम अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट दैट schools don't do that अगर ठीक है टीचर्स की सैलरीज पे करनी होती बट वन टीचर इज टीचिंग So 30 many, kids in a exactly, class exactly, exactly. or And 7 do the maths exactly, exactly. और सुबह से सोचो उसकी 8:30 फर्स्ट लेक्चर शुरू होता है, इट गोज ऑल द वे अप टिल 1 PM और सारी पीरियड्स में उसको डिफरेंट सेक्शंस में क्लासेस लेनी होती हैं। जी, और उसकी जो है 5 मिनट्स अगर आप एक और भी बात बता देती हूँ बिकॉज अगर आप 5 मिनट लेट आए ना आपकी 1 मिनट भी लेट होती तो वो लेट भी करती है so if Exactly, you are late for 3 days you don't get paid for exactly. one Yeah, yeah. तो आपको एक दिन की सैलरी तो मिलेगी नहीं तो मुझे अब कोई नौकरी नहीं मिलने वाली इस सिचुएशन के बाद So बट और टीचर्स ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बहुत अच्छे के कैश पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि जी मेडिकल उनका कवर्ड है या उनको गाड़ी ट्रांसपोर्ट या फोन और ऑल ऑफ दैट ऐसा कुछ मिल रहा है या ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो आई डोंट नो exactly. आई मीन व्हाट डू यू थिंक वेयर कैन वी स्टार्ट टू मेक इट आई थिंक समवन हैज टू टेक अ स्टैंड एंड दैट्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिल्कुल। सो इसकी इंग्लिश में एक मुहावरा है कि मुझे याद नहीं आ रहा बट द क्रक्स वाज कि यूनाइटेड वी Eastern United or something should I google it
I know. United we stand. United we don't fall. Something like this. But अगर सारे लोग साथ होंगे so definitely आपका जो point of view होता है वो across जाता है. So a very nice example was कि in past there was this issue raised by the High Court of Pakistan or the Supreme Court, I'm not sure, and that was about increasing the fees of private institutions or private schools in Pakistan. And the point which was made by the Supreme Court or the High Court was कि ये क्यों आप इतने पैसे बढ़ा रहे हैं? And schools were asked to bring down the fees. And the second thing was to return the money, extra money which they paid. So yes, this is very important, I think. और ये लागू हुआ? Yes, so this was very strictly put to the schools. कुछ लोग schools ने अब ये बात और है कि how accountable we are और कितना ज़्यादा हम check and balance रखते हैं onto our schools. But again, the parents are so scared to even raise their voices कि अगर उन्होंने कुछ किया तो बच्चे को निकाल दिया जाएगा, फिर parents भागते रहेंगे स्कूल उस स्कूल, फिर वहाँ नए स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे जाके उनको एडमिशन फीस भरनी पड़ेगी. पेरेंट्स कहते हैं भाई चुपचाप बैठे रहो. I know कि वो रिस्क नहीं लेते ना कि अब क्या करें उसके बाद. बट ये कि बिल्कुल. अगर of course किसी के अगर 2-3 बच्चे हैं तो I mean that what are we going to do? Oh, we have comments also very pathetic but true. I think no university in the world has made raise this year. I heard lumps increase. Yeah, it was lumps. It's government who could do anything. There are a few comments. People agree to us. Do you see So the एक comments? एक I cannot but I will just take a look. So एक चीज और मुझे पाकिस्तान में नजर आती है या एक गैप नजर आता है या एक मिसकंसेप्शन नजर आता है कि we blame everything to the government. Yes, government should be there to keep a track onto people, but we cannot just say everything के government करेगी तो हम करेंगे, and that is Exactly. not right in my opinion. I don't think Um, so because government is already in a lot of trouble. So कुछ चीजें जो हमें bother कर रही है ना वो हमें ही उसके stand लेना पड़ेगा वरना तो कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल. बिल्कुल. We as a as private people who doesn't have a connection with the government need to understand this. Otherwise सब चीज अगर हम government पे छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं होता है ऐसे. फिर भी कुछ नहीं हो सकता. Yeah, exactly. So the thing is कि if we for example, I mean that's like the whole dilemma of what's happening in the education system. There's one Yes. thing that I want to discuss. So what do you think? Because you are in Germany, you mentioned homeschooling. So Yeah. अगर because I want to have kids or adopt kids one day, but ये जो सारा देखने को मिलता है ना तो you know like हाँ इतनी सारी pieces मैं कैसे पे करूँगी. But the thing is कि I came to know a person who has started homeschooling their kids. And अब नहीं पता कि वो कितना अर्सा जाएंगे. But do you have any opinions or any information about it कि अगर कोई ये stand ये brave and bold stand ले दी homeschooling का पाकिस्तान में जो कि common है ही नहीं exist ही नहीं करता. Where do they go? Like if you were homeschooled, would you be able to end up doing your masters? So in Pakistan, I think अगर for example कोई भी parent या कोई भी entity को मुझे home school करना होता, so the it's like a full-time job. It's you need to be very scheduled and practical and knowledgeable कि अगर मैं बच्चे को इस level पे ये चीज सिखाऊंगा तो उसको ये चीज समझ आएगी. एक और चीज पाकिस्तान में होती है कि अगर हम किसी भी 8th ग्रेडर 6th ग्रेडर 7th ग्रेडर से पूछें कि तुम क्या करते हो, वो कहेगा मैं पढ़ता हूँ. पढ़ाई Yeah. इज नॉट एवरीथिंग. पढ़ाई के आगे भी दुनिया है. पढ़ाई आपकी 1 बजे खत्म हो जाती है. यस, होमवर्क होता है 2 घंटे का, बट स्टिल 1 बजे के बाद यू हैव टू लर्न अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल. कि आपको बात कैसे करनी है, आपको स्पोर्ट्स कैसे करना है. स्पोर्ट्स इज समथिंग विच यू आर मिसिंग आउट अ लॉट इन पाकिस्तान. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आप सिर्फ खेलना या भागना नहीं सीखते या आप बॉल पकड़ना नहीं सीखते. यू लर्न टू मेक स्ट्रेटजीज. यू Yeah. लर्न योर बॉडी. यू लर्न योर बॉडी कि आप कितना ज्यादा आपकी बॉडी पुश कर सकते हैं, आप क्या चीजें कितनी कर सकते हैं. स्पोर्ट्स इज समथिंग which we are missing in Pakistan a lot. So And other things also. I'm not a sporty person, so you know, other things like, for example, dance or singing or yes, art activities exactly. or अगर मुझे खेलना नहीं मुझसे नहीं खेला जाता तो someone हाँ, like me, you know, cooking courses or
things like Yes, that, or street. maybe gardening. So I don't know. There are so many हाँ, gardening, options out exactly. there, but Elocution or writing or whatever. But ये सब whatever. नहीं. बट हम करते ही नहीं है, एंड सो हम सिर्फ पढ़ते हैं, रोड लर्निंग करते रहते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम आता है, हम कहते हैं मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। वो आपको इसीलिए नहीं पता क्योंकि आपने पहले कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया जिंदगी में। जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं करा तो आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। Yeah, So yeah. that is not nice. So coming back to our point on homeschooling, so to homeschool, the person needs to know or needs to understand कि बच्चे को मैं क्या क्या चीजें सिखाऊंगा तो he can compete with this world. जरूरी नहीं है कि उसको हम मैथमेटिक्स सिखाएं, but also we have to teach them some soft skills or how to behave in life, how to live the life, how to manage money. हमारे बच्चों को नहीं आता। Exactly, नहीं आता, वाकई नहीं आता। और अब बैंक से भी कैसे होती है, और अगर पैसे ना हो, Yes, कैसे गुजारा करते हैं, कैसे गुजारा वो करना है, भी नहीं कितना आता, बहुत सारे बड़ों को एग्जैक्टली भी हाउ नहीं टू प्लान। सो हमारे पास ये होता है कि बच्चे को ईदी दो, वो जाके खत्म कर देता है। कर दे, अच्छी बात है, दैट्स नॉट बैड, बट यू आता। कैन ऑल्सो प्लान एंड यूज इट इन अ गुड वे, ताकि आज जब आप बड़े हों तो यू वुड अंडरस्टैंड और यू वुड नो सम बेसिक स्किल्स ऑन हाउ टू स्पेंड द मनी, हाउ टू सेव एंड थिंग्स लाइक दिस। आई थिंक वो एक सिस्टम भी है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप 18 के बाद यू गो डू समर जॉब्स और वर्क और मेक योर ओन मनी और लर्न टू। समर जॉब्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको पार्ट टाइम जॉब्स स्टूडेंट्स की नहीं है यहाँ। नहीं है, अगर एज एग्जैक्टली। कोई स्टूडेंट, हाँ, अगर कोई काम करना चाहे, कोई, they can't be a waiter because it's not safe environment, right? यस, They can't do any respectful part-time job because वो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एंड दूसरा ऑल्सो ये कि सॉरी, मैं आपको ऐसी, कट करूंगा मैरी, सॉरी कट श्योर करूंगा। श्योर, एक नो एक नो, इट्स अ पॉइंट, डायलॉग। एक पॉइंट है ना, मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। वो ये है कि क्या? एक्सेप्टेबिलिटी, कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता पाकिस्तान में और मैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा होता, तो जितनी जिस एंगल की टेढ़ी नजर से मुझे आंखें देखी जाती ना, वो एंगल मैं मेजर भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, या सो या अगर वही एक स्टूडेंट बाहर आता है, तो कोई भी आपकी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार बाहर जाके क्या, अब रेस्टोरेंट में जॉब कर लेना। तो भाई अगर मैं वही हाँ, सेम काम पाकिस्तान में कर सकता हूँ तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं वही काम बाहर आके कर लूंगा तो यार बाहर चला गया ना बच्चा, अब तो सेटल हो गया, सेट हो गया। settle हो तो गया। नो, इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट एक बात याद आई because when I was a student, I moved out from my family, so I was on the streets and it was hell for me because कोई जॉब ही नहीं थी। आप एक सारा दिन आप एक आर्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप शाम को क्या किस तरह की जॉब करेंगे? सो यू बिल्कुल। आइदर वर्क ट्यूशन और लोगों के, मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के असाइनमेंट बनाए फॉर मनी दैट टाइम। मगर एक और डिलेमा ये कि जो है ना, एक बंदा कमा रहा है और 30s के भी लोग, आई हैड फ्रेंड्स लाइक दैट के 30s में चल रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि अपनी जिंदगी कैसे फाइनेंस कैसे करनी है और पैसे बिल्कुल। कैसे गुजारने हैं, या दे डोंट नो। अगर उनको छोड़ दिया जाए बाहर सड़क पे तो उनको पता ही नहीं है कि वो खाएंगे कहाँ से, बिल्कुल। रहेंगे कैसे, कमाएंगे कैसे ना। सो एक दिन वाली जॉब, हमारे पास व्हाइट कॉलर जॉब्स बहुत है बट हमारे पास एक दिन वाली जॉब नहीं है जॉब कि नहीं मैं है। अगर बाहर जाऊं और एक स्टूडेंट लाइफ में 2 महीने के लिए या फिर कुछ सर्टेन टाइम के लिए, बिकॉज यू मेड अ पॉइंट हियर कि जिस तरह से देखा जाता है उस चीज को, जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट की जाती है कि हम लोग समझते हैं कि हाँ, अगर कोई 4 पैसे कमा रहे तो वो बेचारा बेचारा हो गया और उसकी कोई इज्जत बेचारा हो नहीं गया, है। एग्जैक्टली। हाँ, कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उसकी वजह से लोग खत्म कर देते हैं। अगर हम्म। आप भी कोई कुछ बेच रहे हैं, कुछ काम करें तो तुम्हें जरूरत है, ऐसे सबको जरूरत होती है। एग्जैक्टली। सबको जरूरत। So are you do would you like to because you have a student life there, so हम्म। if you don't mind, can you share your experiences with part-time jobs there? Have you worked or what? How are you Yes. financing yourself? Yes. So I am working here as a student job. So जर्मनी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो ये जो with my friends who are maybe in Australia or in the US, उनके पास नहीं है, that is कि here we have this very good uh, office jobs with 20 hours work limit. So how it happens like in US or in Canada or even in Australia as well, कि आपको 20 hours की limit तो होती है, but you cannot work at a proper office. So you can do Okay. some odd jobs like at some restaurants, some food delivery maybe or something like this, but you cannot work at a proper software
house or a company or a proper marketing company, something like this. So Germany में एक ये चीज अच्छी है. So what you can do here is कि you can get a proper job at a office. Now I am working as a software engineer at a company called Zing. It's like LinkedIn. Okay. I do software development over there. But yes, there are other jobs here available as well. So अक्सर ऐसे लोग होते हैं. अब इधर थोड़ा सा सीन ये है कि यहाँ पे आईटी की जॉब्स आते हैं. सो बाकी अगर आप मार्केटिंग के हैं या समथिंग लाइक दिस, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या आपको लैंग्वेज नहीं आती, सो इट्स अ बिट हार्ड और to land a nice job. But then again, you can still look out for something like work at a restaurant or something जहाँ पे आपका एटलीस्ट महीने के खर्चे आपके निकल आते हैं and you can easily fund yourself. जो You have आपका खर्चा respect also. yes, so ये भी बहुत जरूरी है. Nobody, believes you or looks at you with so much Exactly. degrading and all of that. ऐसा कुछ भी नहीं है. I wish कि अगर ये हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहेंगे और आगे पढ़ना चाहेंगे. So they can study or something like that. बिल्कुल. So मैं दो पॉइंट यहाँ We पे can do a lot. जी. So दो पॉइंट्स मेरे जहन में आए थे. एक ये कि पाकिस्तान में since you mentioned कि even if they're 30 they don't know what to do. So how I take this is कि it's fine not to know what to do, but it's not fine to just be okay with it. Yeah, So exactly. I think it's fine कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता, आपको समझ नहीं आ रही, आप उस पे लगे रहें. ये नहीं कि यार you just give up and sit back, यार अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं. So नहीं, that is क्योंकि not okay. उनको आई सी कि उनका भी कसूर नहीं है ना कि एक बंदे को 30s में उसको अम्मा पापा घर पे भी रख रहे हैं, खिला पिला भी रहे हैं, पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, एयर कंडीशनिंग भी है, सब Exactly. कुछ सारी सब उसकी कुछ मिल रहा है, जरूरत है, गाड़ी भी मिल सब रही है, कुछ मिल रहा है. सब हाँ, मिल रहा है. फिर हाँ. उसके बाद अगर उसको गालियां भी सुनने को मिल रही है थोड़ी सी तो वो सुन लेगा. वो कहेगा उसको यार जब छोड़ो यार, मेरा दिन तो निकल रहा है ना मेरा सुकून से. और फिर उसके बाद के देखो, आई मीन आई एम डिपेंडेंट ऑन देम. आई हैव सीन इट. So go out, get a job, pay for your bills and everything, and it's scary, but it's possible also. पूरी दुनिया में लोग करते हैं. तो I think I mean एक घर में 5 लोग खा रहे हैं और एक बंदा कमा रहा है, so it's not a good setup. It makes my blood boils when people don't know how to be on their own. Yes. ये बहुत एक ठीक है, फैमिली सिस्टम इज एवरीथिंग एंड इट्स सपोर्टिव एंड एवरीथिंग, मगर ये होना चाहिए. ये वी नीड टू चेंज ऑल ऑफ दैट, This ताकि जब एक brings बंदा me. बाहर. Yes. जी जी. या Please. प्लीज. क्योंकि अगर हम वहां से शुरू करेंगे ना, एक बंदे को पता है, जब आपको पता होता है कि आप बाहर जाके जिंदा रह लेंगे. मुझे पता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, मैं कुछ से कुछ काम करके सही कुछ बात से है. कुछ कमा लूंगी, ठीक है ना. बिल्कुल. यू एंड मी कैन सर्वाइव, एंड आई नो कपल ऑफ मोर पीपल हु हैव बीन थ्रू स्टफ एंड दे वी नो कि हम जिंदा रह सकते हैं. तो जब आपको ये पता होता है ना, तो फिर इट्स एम्पावरमेंट. देन यू कैन मेक अ स्टैंड अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम. देन यू कैन गेट अप एंड चेंज थिंग्स. जब आप अपनी बेसिक खाना ही नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल. टू बी ऑनेस्ट, तो आप बाकी चीजों के लिए क्या स्टैंड उठाएंगे. बिल्कुल. सो एक चीज बाहर बाहर के माशरे में मुझे अच्छी लगती है, दैट इज सेल्फ रिलायंस, एंड दैट स्टार्ट्स विद द एज ऑफ 18. सो मेरे यहाँ पे कुछ जर्मन दोस्त हैं, एंड आई आस्क्ड देम कि क्या सीन है. सो इवन इफ देयर फैमिली लिव्स इन द सेम सिटी, दे डोंट लिव टुगेदर. Yeah, it's a bad thing. It's a bad thing to live It's with your but parents. yes, I would agree to a certain extent, not completely. But what I learned from them is कि आप 18 के हो गए, you should be capable to do everything else in your life. You should be able to earn money, you should be able to do your groceries, you should be able to cook yourself, cook your own food. Cook yourself नहीं, अपने आप को पका के नहीं खाना. But you should be able to do your groceries. तो सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए. पाकिस्तानी कल्चर में आप बिल्कुल रहें पेरेंट्स के साथ, बट बी अ सपोर्ट टू देम, नॉट बी अ बर्डन टू देम. सो आई वुड टेक दिस दैट एज अ पॉजिटिव पॉइंट कि आप रहें अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छी बात है, बट सपोर्ट देम. ये नहीं कि आप बर्डन बने रहें, घर आएंगे अम्मा खाना बना के दे देंगी, कपड़े मुझे धोने नहीं है, कुछ काम नहीं करना, ग्रोसरीज में टेंशन नहीं है, हर महीने सारी ग्रोसरीज अम्मा अब्बा लेके आ जाते हैं, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं. मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ. Yeah, So yeah. that is not okay in my opinion. So That's not ये okay. And बिल्कुल. it's दूसरा ये है, I don't go towards religious point, but जिस तरह से हमारा strong opinion है, हम इतने sensitive हैं, तो I don't understand कि इतना religion. Let's not go into further discussion to avoid any trouble. But because it's sunnat. अपने कपड़े धोना, पेवन लगाना, खाना बिल्कुल. पकाना, सफाई करना, it's all sunnat.
सो बिल्कुल। ये फॉलो नहीं किया जाता ये सारा लेकिन ये ट्रस्ट। हमारे लिए काम इंक्रीज कर देगा ना, तो हम इसको साइड पे रख देंगे कि हाँ, कि हम साइड पर रख देंगे कि एक लूजर चीज समझ जाती हो, तुम खाना खुद पकाते हो, तुम्हारे पास सर्वेंट्स नहीं है, एंड यू नो बिल्कुल, इट्स लाइक अ बिग स्टीरियोटाइप टैबू हियर, इट्स अ टैबू बिल्कुल, हियर कि कोई अपना काम खुद करे तो खुद करे, बहुत तो वो बड़ी, कहते हैं कि हाँ बड़ी चीज है, क्या सीन बुरी है? चीज है। क्या सीन है, गाइस पास पैसे नहीं है ना, इसलिए आई मीन एग्ज़ैक्टली, बेचारियां ऐसा। तो नो आई मीन इट्स इन फैक्ट यू डू योर वर्क राइट, यू डू यस, एवरीथिंग ऑन योर ओन। एवरीथिंग टेल मी एंड वन थिंग, एडिक्शन नहीं है? अम, है, और बहुत मज़ा आता है, अच्छा है, लगता है कि आप अपना मजा आता सारा है। काम खुद करें, यू आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, यू नो व्हाट टू हम्म, ईट, यू नो व्हाट डू यू हैव इन योर फ्रिज, यू नो कि आपको कपड़े कब धोने हैं, कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे किस पे खर्च करने हैं, सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं पाकिस्तान में मैंने नहीं सीखी थी। पाकिस्तान में येस मैं थोड़े घर के काम करवा लेता था, मैं थोड़ा अच्छा बच्चा था, बट अगेन ग्रोसरीज़ मेरी अम्मा लेके आती थी एंड मुझे कभी बस दही लाना नहीं दिया कि बेटा थैले दही उठा के ला दो। गाड़ी गाड़ी से थैले उठा के अंदर लेके आने थे। That's it. Okay. ये भी बहुत है। बहुत कुछ लोग काम है। ये करते हैं, बहुत काम है, but it's not the I'm talking about. I want to mention that I don't want to criticize anyone, but it's not यस, यस। just big. I'm telling everyone कि भाई you know ये क्या बात करी है, क्योंकि हम बहुत sensitive लोग हैं, बहुत जल्दी से offend तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, but this is the basic infrastructure, बिल्कुल, you know, ऑफ अ and पर्सनैलिटी, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। yeah, of तो a इवन human आप being. एग्ज़ैक्टली अगर आपके पास सारे इवन पैसे हों, दैट इज़ वेरी गुड। हर किसी के पास पैसे इज़ नॉट एवरीथिंग, लाइक यस कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज़ होती हैं, कुछ के पास नहीं होती। बट टू टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, टू ग्रो इट, यू नीड टू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ स्किल सेट, और वो Yeah, एक स्किल सेट अक्सर लोगों में नहीं होता, इवन विद रिसोर्सेज और इवन पीपल विदाउट रिसोर्सेज। तो yeah. पीपल जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती उनके पास बहाना होता है कि भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं, हम क्या क्या करें? मैं करें। can I will share a very interesting story very shortly. मैं श्योर, यहाँ पे टेक I योर love टाइम। to cook. मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ because it's about you not me. तो I love cooking and I have cooked for people, for friends, barbecues and पता नहीं क्या क्या, और मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त थे उनको किचन में जाना भी नहीं आता था कि you know आप सारे काम खुद कर रहे हैं, सारी चीजें, and then I don't like to have army of servants, right? हम्म, ये यहाँ पे सीन था। When I was traveling, I love to cook. तो एक दफा I was traveling in Europe and then I started cooking and everybody jumped in the kitchen and started to help me. ऐसा लग रहा था कि कोई रेस्टोरेंट चल रहा है। And I was the chief chef. और एक प्याज काट रहा है, एक आलू काट रहा है, and I made आलू के पराठे for them. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, and they said no, I mean you are cooking for us, so we have to help you. बिल्कुल। ऐसे हाँ, अब मुझे तो और लगा कि ऐसे ये हेल्प मिल रही है, you know, मतलब तो ये ठीक भी है, कुछ होता है। हाँ, अगर तो देखिए प्लेट्स भी आप खुद से लगा रहे होते हैं और हर हम्म, चीज, और एक तरीका होता है कि इफ यू गो टू समवन्स हाउस और समवन इज you know independent or have a certain structure, so एक बिल्कुल। कुछ ना कुछ gesture के तौर पे आप कर लेते हैं, I go and I offer to कि आप टेबल क्लीन कर दें या डिशेस धो दें या हम्म, इस तरह का, मगर वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला ना कि भाई सब listen, I'm not cooking for you. बिल्कुल। तो This यहाँ पे just happened. मैं आपको शेयर करता हूँ हाउ इट हैपेंस हियर इन जर्मनी। सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, पाकिस्तानी फ्रेंड्स हियर। सो हाउ इट यूजुअली वर्क्स इज कि हम अगर कोई कोई दावत होती है समथिंग लाइक दिस, सो आप सिर्फ दावत के लिए नहीं आते, बट आपको पकाना भी होता है। सो दैट इज समथिंग वेरी हाँ, वियर्ड। और yeah, very खाने के बाद ये रूल होता है कि प्लेट आपको अपनी खुद धोनी है। ये हाँ, नहीं कि exactly. यू जस्ट स्टैक इट एंड गो। जिस तरह यूजुअली पाकिस्तान में ही होता है कि आप दावत जाते हैं, खाना करते हैं, खूब चमचे गंदे करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बट हाँ जी, हियर और चलो, yeah, exactly, yeah, sorry. बट हियर वी हैव लर्न्ड लाइक दिस, इवन लाइक इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी इट्स वेरी मच नोन कि भाई आपको अपने सारे काम खुद करने हैं। आपने अगर कोई गलती से चीज़ गिरा दी है, आपकी ज़िम्मेदारी है उसको उठाना। आपकी ज़िम्मेदारी है सारे अपने बर्तन धो के जाना, ताकि आप दूसरे के ऊपर तो बर्डन नहीं बने ना। नहीं यही चीज़ बने मज़े की बात है, अगर पाकिस्तान जाते हैं हमारे दोस्त, तो वहाँ तो हमें सब अय्याशी मिलती है। सच में, तो इनफैक्ट जाके किसी दोस्त ने शिकवा किया कि आई डोंट नो कि जरूरी है कि हम तुम्हारे घर आके काम करें, आई सेड नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई मीन आई डोंट नो, इट्स जस्ट यू नो एक बंदा कर करके मर जाता है, और बट इट्स जस्ट एथिक्स, और ऐसा नहीं है कि दे हैव टू डू इट, बट चलो एक दावत होती है, एक अलग सेटअप होता है, बट हुँ, इट्स जस्ट but I've seen ke in the setup ke my those friends who have been independent and surviving or self-made,
they do the dishes when they come over and they offer. I don't let them because एक यस, मेहमान वाला तो मेहमान हमारा वाला, है नहीं हाँ, मेहमान है कि नहीं नहीं तो नो 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 बर्तन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एजाज साहब कनाडा वाला सो वो मेरे घर आए एंड देन आई मेड सम पैनकेक्स वो कनाडा में रहते हैं आई होप ही इज वाचिंग सो देन ही सेड नो 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 मैं नहीं नहीं मैं कर लूंगा आई डू माय डिशेस ऑलवेज ऐसे नहीं नहीं आप रहने दीजिए तो कहीं नहीं मैं डिशेस खुद करता हूँ तो when I was like because ये बहुत कुछ मैटर करता है बिल्कुल, आपको एक आई बिलीव कि ये सारी चीजें आपको इंसान बनाती हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं बनाती। बाहर आते हैं तो आपको बनना पड़ता है। फिर फिर बनना पड़ता है और वाकई बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इट्स सैड आल्सो कि एक बंदा अगर अपना खाना नहीं बना सकता और अपने आप को खिला भी नहीं सकता घर खिला भी नहीं जाके सकता। एग्ज़ैक्टली। किचन में जाके क्योंकि किचन में हुँ, जाना ही नहीं आता ना जब किचन में जाना नहीं आता तो कैसे हेल्प करेंगे ट्रू स्टोरी। तो ये चीज़ें सारी ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जस्ट टू डेवलप अ पर्सनैलिटी और टू डेवलप द बेसिक ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ यू मेंशन्ड। एंड आई थिंक बिकॉज फिर ये सारी चीजें जब वो शुरू से आपकी इतनी कंडीशनिंग होती है ना तो देन यू कैन ब्रेक द सिस्टम विद द स्टीरियोटाइपिंग बिल्कुल, एंड स्कूलिंग एंड ऑल ऑफ दैट के स्कूल्स भी कुछ ब्रांड है कि जी हम तो इस फलां स्कूल से पढ़े हैं और हम तो इस स्कूल में जाते हैं और लेबल्स लगे हुए होते हैं कि बिल्कुल। you know that school's name Rian and something like that our name but इस तरह से है which is so हुँ, wrong education should be just education not a label on you बिल्कुल। you know so तो it's very sad आई विल it's टेल यू अ sad फनी स्टोरी अबाउट जर्मनी। यूजुअली यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं। अगर Hmm. आप कोई भी कहें कि बोलते हैं मैं तो टॉप इसमें पढ़ता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ। बट लाइक इन जर्मनी, लाइक अंदर जर्मनी में यस यू कैन लुक एट द रैंकिंग्स एंड एवरीथिंग, बट in Germany, it's not considered good to rank a university. It's considered Yeah. that every university has the same level, has the same kind of teachers or resources as some other big university जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, for example, या जहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल है। Hmm. सो फनी स्टोरी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वहाँ पढ़ाते हैं। 6 महीने के लिए वो हमें पढ़ाते हैं, 6 महीने फिर कहीं और चले जाते हैं पढ़ाने। सो एक्सचेंज यहाँ पे इतना ज़्यादा है बिटवीन द टीचर्स कि देयर इज़ नो नॉलेज गैप। Meanwhile, in Pakistan, I will give you an even example of IBA. अगर if you are a teacher at IBA, you cannot teach elsewhere. Really? Yes, unless you are a visiting Oh my faculty, yes, but if you are a full-time teacher, you cannot be an instructor elsewhere. So पाकिस्तान ये में काफी वो स्कूल्स में भी होता है हम्म ये काफी स्कूल्स में भी सो होता ये है सारे नॉलेज गैप्स हैं जो क्योंकि हमारे पास एजुकेशन एज अ गुड बिजनेस एंड अ गुड इंडस्ट्री, तो हमने वहाँ पे चेक्स लगाए हुए हैं। वेरी बैड एंड सैड इन माय ओपिनियन। कि जितना हम पैसे देंगे उतनी हमारी यूनिवर्सिटी आगे होगी फिर उतना हमें बिल्कुल। आगे गॉड नोस अल्लाह अल्लाह जो है अब कुछ ही कर सकता है अल्लाह के करने से पहले हमें खुद करना पड़ेगा। तो खुद करता है बिल्कुल। तो गॉड, एग्जैक्टली इसकी भी एक इंग्लिश मुहावरा है, ये वाला मैं भूलता नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ ये, कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स help देमसेल्व्स। themselves तो exactly अगर आप yeah अपनी yeah खुद मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, वरना अल्लाह ताला क्यों कहेगा कि यार इसकी मैं क्यों मदद करूँ। I तो हमें think अपनी खुद की मदद करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पहले सबसे पहले तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है हमारी बिल्कुल। को और आई थिंक पेरेंट्स को भी जरूरत है कि अक्सर कहते हैं कि मैंने ये भी देखा है कि हमें भाई हम तुम्हें दे तो रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हें क्या जरूरत जरूरत है। जो है तुम्हें क्या जरूरत है ये तो मैंने बहुत सुना है कि हमें क्या जरूरत है इसको जरूरत थोड़ी है जो काम करे स्पेशली लड़कियों के साथ ये बहुत होता है हम्म अगर लड़कियां कुछ करना चाहती तो उनके साथ ये बहुत होता है कि तुम्हें क्या जरूरत है लड़कों वेरी बैड। को हाँ डिफरेंट चीज होती है कि अभी तुम पढ़ाई करो सिर्फ क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हाँ से नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए वगैरह 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 सो यू नो आई थिंक इट्स फॉर पेरेंट्स एंड आई थिंक वी डिस्कस्ड अ लॉट पूरा सब कुछ के पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन सिस्टम एंड इट ऑल आई थिंक इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट परफेक्टली शुरू से पुट। शुरू होता है perfectly put, or every entity or every domino is a part has to play a part of their own role. या If या कोई भी एक आगे पीछे होगा, it will affect everyone, और अभी जो यही हो रहा है। So every entity, every person, every persona needs to understand कि भाई मेरा ये रोल है and this is the right way I can do a thing. अगर वो एक एक या चीज पे सोचना शुरू करेंगे तो definitely at the end of the day the dominoes will not affect each other. I want to
add a bit because Free Spirits, the group is for Yes, supporting each please other and looking feel free. for businesses. So this mug I have, it's called. This is my one of my favorite mugs. I think कहाँ से आएगा? Did you name it? No, no, no. It's by I have this mug by Mughal Empress and it says Dafadur. So she is a old friend of mine, and she's designing. It's a new business, and she's designing Very these nice. mugs. And it's very quirky और इसी तरह के बहुत ज़्यादा जो है मिनिएचर में इस तरह के जो हमारे स्लैंग्स हैं वो mugs पे होते हैं. Mughal Empress is called. You can order it online and on Instagram, or there is a website also. It's not sponsored by her. I just do that because if I have something around, so I mention it कि कौन सा कहाँ से क्या है. So that's about it. If you want to, where do you see? This is my last question. I think we have covered a lot more A lot, than we yes. expected. A lot. Okay, I mean, where do you see Parhaku.com going, or online learning in Pakistan going So first further? I will Because is answer there about, anyone yeah. else, or sorry to cut, or to kuch, or there are any other portals or anything? I think Parhaku.com is the only one I have seen so far. There are definitely more portals out there, and there in any industry you put your step in, there are 100 other people. But how Okay. we are setting ourselves apart is that we are not for profit. Okay. And yes, we want to earn money, but we want to reinvest into the Pakistani education ecosystem. And how we want to do is that we want to create free resources for all of the students for all of the boards in Pakistan, ताकि कोई भी बच्चा कहीं भी छोटे शहर बड़े शहर जहाँ पर भी बैठा हो, उसको पता हो कि हाँ मुझे यहीं जाना है, मुझे यहाँ पे सब चीज़ फ्री में मिलेगी, मुझे कभी पैसों का मसला नहीं होगा, या पैसों का या रिसोर्सेज का. ओनली what they need is an internet connection and a mobile phone or a computer, which I think is very much accessible to everybody. We are also in touch with some companies like TCF, for example. We are still in talks with them. वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर या फोन नहीं होता. So what we are doing is कि वहाँ पे अगर उनके पास कंप्यूटर लैब है, for example, so they can use the lab to use our technology. So इस तरह के different चीजें या different aspects in which we are looking forward to, and I really hope कि people try to adapt to this, क्योंकि आज कोरोना हुआ था, for example, 3 महीने 4 महीने में इस पूरा education system was kind of frozen, और अभी भी they want to open it up. It's very unsafe, but still they want to open it up because there is a huge pressure from schools onto Yeah. the government. But at the today or tomorrow, the schools will have to adapt to match the language of the student, and also to match the environment. So ये दोनों चीजें हैं जिसके ऊपर स्कूल्स को अडेप्ट करना पड़ेगा. सेम गोज फॉर द पेरेंट्स के बच्चा जो है वो सारे काम टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है, और अगर हम एज पेरेंट्स फॉर एग्जांपल उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो देयर विल अगेन बी अ लैंग्वेज बैरियर. एंड फॉर स्टूडेंट्स इट्स आल्सो देयर रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट रिस्पांसिबली. टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि यूज इट इन अ रॉन्ग वे. यस, there could be of using technology in the wrong ways, but also there could be right ways in which you can make an impact on others and as well as on yourself. So technology को भी positively use करें. Apart from this, the speaking of the Pakistani ecosystem, especially on education, there is no other way other than adopting to education and doing this very fast, because आज कोरोना आया था, कल कुछ और आएगा. आज 6 महीने बंद थी एजुकेशन सिस्टम, कल पूरे साल के लिए या 2 साल के लिए हो सकती है. सो वी कैन जस्ट कीप आवर यूथ हैंगिंग, और हम रुक नहीं सकते. सो वी हैव टू अडॉप्ट for the bad times rather than wait for the bad times to come and then rush at places. Yeah, exactly. We have to be prepared and Yes, I think yes, take control of it. Even जो yes. एक बंदा भी कुछ करता है तो उसका इफेक्ट बहुत कुछ चेंज होता है. I believe in that. I totally agree with you. So do you want to give a message, because you are young and doing a wonderful job and then doing a lot? I keep seeing your stories in Germany, cooking and exploring and all of that. And if you can mention if anybody wants to follow you or parhaku.com ka jo main address hai, everything.
Yes, so feel free to reach out to me. I will comment my socials under Marine's video link maybe. So people It will can reach be. out to me. I Yeah. will post it on YouTube or Yes, Facebook. that's Maybe I will perfect. mention all of your links and everything. That's Your perfect. So if anybody wants to reach out to me and wants to take any information about Germany, feel free to reach out. Secondly, yes, पढ़ाकू.com हमने बहुत बात की है, तो I won't brand more of it क्योंकि वो लोग बोलेंगे यार ये तो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है. But I would have a message for everybody who is listening or who would listen to this. I would quote Steve Jobs here, and they are just 4 words, but they are very powerful. And they are stay hungry, stay foolish. हमेशा भूखे रहें और हमेशा पागल रहें to do some new stuff. So I think these are very nice words, and I quote this to everybody. these are very strong words actually. अगर इसको positively लिया जाए तो. सही बात है. So these are very strong words. So That thank is you, true. Sefu, for being Thanks, here. man. It was amazing and it was very informative and very full of substance discussion. A strong discussion, I would say. I wish you all the best with everything you are doing, and I hope कि एक दिन बहुत कुछ change हो जो हमने यहाँ पे जिसकी हमने यहाँ पे इल्तिजा की है इल्तिजा और की. उम्मीद की है एग्जैक्टली कि शायद कुछ कुछ बदले और बहुत कुछ बदले बट आई बिलीव दैट पीपल लाइक यू आर डूइंग द समथिंग और in fact a lot of things so take care and I will see you soon in Karachi hopefully. Yes, inshallah. So at the end, I would like to thank you, Marine, for inviting me for this, and I would also give a shout out or a special thank you to Free Spirits. I wish you best of luck with this. I really hope that you also the impact which you want to create in the Pakistani community or in people's life. I really hope that you also succeed in that goal. Thanks again. Ameen to both of us. Amin. You're most welcome. Thank you for your time. So I will just tell you more about Free Spirits. It's a group on Facebook. It's a platform. It's meant to promote and appreciate and support you. It's a platform where you can share your ventures and doing and ongoing things with me. I always give a shout out to all the businesses, or if you are doing something in my Instagram stories and in my Facebook stories and all of my platforms. So Free Spirits पे जो भी शेयर होता है वो सिर्फ वहाँ शेयर नहीं होता मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर होता है basically it's I created this to share my resources to support each other and everyone who are doing a lot of things. So this is one session that I do. I'm trying to do it more often, but we have done a couple of good discussions, strong discussions, and I'm trying to bring people who are making a difference. So you can join my group Free Spirits and take care of yourself, or you can watch this also on my YouTube channel. It will be there as well with other dialogues as well. So please do subscribe to my YouTube channel. It's merinashmi.mh and I will be waiting for you in the group. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो आप लोग करते रहे हैं करते रहिएगा. Much love.